Hello student, I am Rashmi Madhva, Assistant Professor of San Andrew Institute of Technology and Management from Etce Department. Student, today's topic is stability and Routh-Hurwitz's criteria for stability, that is commonly known as RH criteria. So students, before RH criteria, you know about the stability. Basically, what do you mean by stability? Stability means that a system which is said to be a stable if its output is under control. If its output is under control, otherwise it is said to be unstable. A stable system produces a bounded output for a given bounded input is called the system stable. Sometimes it can be like that, BIBO, bounded output bounded input. कि आपका अगर बाउंडेड आउटपुट है, अगर एक बाउंडेड इनपुट के लिए, then the system is said to be stable. Now this is the figure for the response of a stable system. CT and T, that is a response of the system between T and CT, and this is the response of the first order control system for the unit step input, and the response has the value between 0 and 1. So if it is a bounded output, because input is between 0 and 1, so you will get the bounded output. And you know that the unit step signal has a value of 1 for all the positive values of t including 0. So it is a bounded input. Therefore the first order control system is stable since both the input and output are bounded. आपने जब फर्स्ट ऑर्डर टाइम रिस्पॉन्स पढ़ा था तो उसमें आपने यूटी जब यूनिट स्टेप सिग्नल की इनपुट ली थी RS1 by S, then आपने उसका ग्राफ यही किया था, which is exponentially increasing up to 1. So for the bounded output हमें यहाँ पे bounded for एक bounded input के लिए हमें bounded output मिल रही है, तो then the system is called to be stable. Now stability can be categorized into three types, that is absolute stable system, conditional stable system and marginally stable system. अब आपके पास तीन तरह की stability है. तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम क्या कहता है? इफ अ सिस्टम इज स्टेबल फॉर ऑल रेंज ऑफ द सिस्टम कंपोनेंट वैल्यू देन इज द एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम. मान लो अगर सारी रेंज के लिए सिस्टम की वैल्यू स्टेबल है तो आप उसे स्टेबल एब्सोल्युटली स्टेबल कहेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मींस दैट आपकी कुछ रेंज के लिए मान लो सिस्टम की वैल्यू स्टेबल नहीं है, कुछ के लिए है, तो आपका वो अलग अलग हो जाएगा, कंडीशनली एंड मार्जिनली स्टेबल. बट जब आपका सिस्टम स्टेबल हो जाएगा सारी रेंज के लिए, if the system is stable for all the ranges of the system component value, then it is known as absolutely stable system. So the open loop control system is absolutely stable because if all the poles of the open loop transfer function present in the left half of the S plane, and similarly the closed loop control system is absolutely stable if all the poles of the closed loop system present in the left half of the S plane. Basically students, poles play an important role in the stability. The location of poles determine the stability of the system. If the poles of a system of if a poles of a transfer function lie on the left half of the S plane, then system is absolutely stable. If the poles of the uh, transfer function of a poles of a system lie on the right side, if all poles or few of the poles lie on the right side of the S plane, then the system is said to be unstable. So poles plays an important role in the stability. Zeros और poles दो चीजें होती हैं ट्रांसफर फंक्शन की. poles हमें डिनोमिनेटर से मिलते हैं जब हम उसको इक्वेट करते हैं जीरो के इक्वल, और न्यूमिनेटर से हमें जीरोस मिलते हैं. तो स्टेबिलिटी में जीरोस का कोई रोल नहीं है, सिर्फ पोल्स से ही हमारे, अभी यहाँ पर हम पोल्स की बात करें तो पोल से ही हमारे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन के पोल से ही हम स्टेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं. Now come to the conditionally stable system. If a system is said to be stable for a certain range of system component value, then it is a conditionally stable. नाम से ये कि कुछ conditions पे ही system stable होगा, because certain range ही होंगी जिसमें हमारे component या फिर system की values जो है stable है. Otherwise हमारा system जो होगा उस case में conditionally stable होगा. Now I come to the marginally stable system. If a system is stable by producing an output signal
with a constant amplitude and a constant frequency of oscillation for bounded input, then it is called a marginally stable system. देखिए बेसिकली मार्जिनली स्टेबल सिस्टम को अगर आप माइंड में रिमाइंड करके रखना चाहते हैं तो आपको पता है एस डोमेन में जब हम यूनिट सर्कल प्लॉट करते हैं तो हम उसको एक छोटा सा ब्रीफ ट्रिक भी याद कर सकते हैं. इफ द पोल्स लाई ऑन द लेफ्ट साइड देन आपका सिस्टम स्टेबल है, लाई ऑन द राइट साइड द सिस्टम अनस्टेबल है. मार्जिनली में तब भी आता है सिस्टम अगर मेरे जो इमेजिनरी एक्सिस है, रिमाइंड करिए अपने माइंड में ही, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस एस प्लेन की, अगर मेरे पोल्स इस इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करते हैं तो भी मेरा सिस्टम जो होता है वो मार्जिनली स्टेबल होता है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मार्जिनली, ना तो वो पूरा सिस्टम स्टेबल है ना वो अनस्टेबल है. इन बिटवीन सिस्टम इज कॉल्ड अ marginally stable. तो open loop control system is a marginally stable if two poles of the transfer function is present on the imaginary axis. देखिए नोट की important point मैंने यहाँ पे mention भी किया कि अगर दो poles open loop के if any of the two poles lie on the imaginary axis और imaginary axis पे conjugate pair की form में हमारे poles lie करते हैं. और similarly if the closed loop control system is marginally stable if the two poles of the closed loop system present on the imaginary. टू पोल्स ही क्यों कहा है क्योंकि जो हमारे इमेजिनरी एक्सिस पे पोल्स लाई करते हैं वो एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं. सपोज एक पोल है -3 प्लस 4j और दूसरा उसका कंजुगेट क्या होगा -4 -3j, उसका कंजुगेट ही हो जाएगा. तो इसलिए वो दोनों पोल्स हमारे कहाँ लाई कर रहे हैं, इमेजिनरी एक्सिस पे. तो सिस्टम इज माई मार्जिनली स्टेबल सिस्टम. Now this is the concept of stability. Now analysis of the stability. अब इस stability की हेल्प से कैसे हम क्वेश्चंस करते हैं और क्या आरएच क्राइटेरिया में इसका रोल है. सी stability analysis. Stability analysis in the S domain using RH criteria. फाइन. अब हमने स्टेबिलिटी एनालिसिस निकालना है एस डोमेन में यूजिंग आरएच क्राइटेरिया. और इन दिस क्राइटेरिया वी रिक्वायर्ड अ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ द क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम. अब हमें क्या चाहिए, इसमें एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ द क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम. Now, this is the Routh-Hurwitz stability criteria. Routh-Hurwitz stability क्यों बोला, क्योंकि जिसने इसे डिस्कवर किया था उसका नाम पे ही ये स्टेबिलिटी क्राइटेरिया हुआ था. दैट्स व्हाई, और सिंपलिसिटी के लिए हम इसे आरएच क्राइटेरिया बोल देते हैं. सो आरएच क्राइटेरिया के लिए हमारे पास दो कंडीशंस है, एक नेसेसरी कंडीशन है, एक सफिशिएंट कंडीशन है. इफ नेसेसरी कंडीशन डज नॉट satisfy then we can say the system is unstable, and if the necessary condition satisfy then maybe system is stable or not stable. So RS criteria is having one necessary condition and one sufficient condition for the stability. If any control system does not satisfy the necessary condition then we can say that the control system is unstable. तो देखो यहाँ से क्लियरली हो जाएगा, अगर necessary condition ही satisfy नहीं है तो system unstable है. अगर मान लो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो भी कोई जरूरी नहीं सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो ये हो जाएगा मे बी सिस्टम स्टेबल और नॉट. आफ्टर दैट अब उस नेसेसरी कंडीशन के सेटिस्फाई होने के बाद हम देखेंगे सफिशिएंट कंडीशन. सो इफ द सफिशिएंट कंडीशन इज satisfied then we check the system is stable or not. So sufficient conditions helpful for knowing whether the control system is stable or not. इसमें हम necessary condition और sufficient condition पढ़ेंगे, साथ में एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि कैसे आरएच क्राइटेरिया को सॉल्व कर रहे हैं to find out the stability. Now first of all, what is the necessary condition for the RH stability? The necessary condition for the RH criteria is that the coefficient of all the characteristic polynomials should be positive. Important point है कि सारे characteristic polynomial के coefficient positive होने चाहिए. This implies that all the roots of the characteristic equation should have a negative real part. Clear? Now this is the consider this characteristic equation. A naught s की power n plus a1 sn minus 1 plus a2 sn minus 2 plus so on an minus 1 s1 plus an s naught 0 and equals to 0. Not that there should not be any term missing in nth order. आप ये जैसे मान लो s की पावर 5 से शुरू हुआ तो s की पावर 5, s की पावर 4, s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1, s की पावर 0 तक जाना चाहिए. तो कोई भी nth ऑर्डर की टर्म कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में मिस नहीं होनी चाहिए. यही मेरी नेसेसरी कंडीशन है.
This means that nth order characteristic equation should not have any coefficient that is zero. अब यहाँ पर ऐसा कोई coefficient नहीं होना चाहिए जिसकी वैल्यू जीरो, ठीक है. बट इज द सफिशिएंट कंडीशन, ये नेसेसरी कंडीशन हो गई. मतलब अगर मान लो हाईएस्ट पावर S4 से शुरू हुआ है तो अप टू S4 S3 S2 S1 S0 कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए, या फिर किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए. अगर वो जीरो होगा तो नेचुरल है वो पूरा ही टर्म जीरो हो जाएगा. नाउ कम टू द सफिशिएंट कंडीशन फॉर RH stability. The sufficient condition is that all the elements of the first row of the route array should have same sign. See, अब जब हम क्राइटेरिया से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो उसका फर्स्ट कॉलम होगा उसमें सारे कोफिशिएंट जो है सेम साइन के होने चाहिए, या तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव. अगर मान लो एक बार भी साइन चेंज हुआ या दो बार भी साइन चेंज हुआ, मतलब सारे साइन और सेम साइन के नहीं रहते सारे एलिमेंट, तो मेरा सिस्टम स्टेबल नहीं होगा. दिस मीन्स दैट all the element of the first column of the route array should be either positive और नेगेटिव, या तो सारे पॉजिटिव होने चाहिए या सारे नेगेटिव होने चाहिए. अगर मान लो एक पॉजिटिव हुआ फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इसका मतलब साइन चेंज हो रहा है, तो मेरा सिस्टम स्टेबल नहीं होगा. और ये आपको चीज तभी समझ आएगी जब आप एक एग्जाम्पल देखेंगे. उस एग्जाम्पल से पहले हमें कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है वो देखिए. राउट एरे मेथड बोलते हैं. कैसे हम अपने कोफिशिएंट्स को टेबल की फॉर्म में अरेंज करते हैं, देखिए. इफ ऑल द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एग्जिस्ट टू द लेफ्ट half of the S plane, then the control system is to be stable. Yes, अभी अभी मैं बात किया, अगर लेफ्ट हाफ ऑफ द S plane में लाई करेंगे तो सिस्टम मेरा स्टेबल है. इफ एटलीस्ट वन रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एग्जिस्ट to the right half of the S plane, then the control system is to be unstable. And so find out the roots of the characteristic equation to know whether the system is stable or unstable. But it's difficult to find out the roots of the characteristic equation as order increases. Yes, अगर मान लो हमारा 2 ऑर्डर है, 3 ऑर्डर है, 4 ऑर्डर, जैसे जैसे ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है तो रूट्स जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के निकालने बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं. दैट्स व्हाई आरएच क्राइटेरिया हमें हेल्प करते हैं. मान लो 5 ऑर्डर की इक्वेशन है या 6 ऑर्डर की इक्वेशन है, तो उस केस में हमारे रूट्स निकालना इतना ईजी नहीं होता है, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है. तो इसीलिए हमें आरएच क्राइटेरिया, यहाँ पे आप कितना भी ऑर्डर लो सिस्टम का, आप एक छोटे से न्यूमेरिकल को सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं सिस्टम इज वेदर स्टेबल और अनस्टेबल. That's why to overcome this problem, there we have a RH method. In this method, there is no need to calculate the root of the characteristic equation. First, formulate the route table and find out the number of sign changes in the first column of the route table. The number of sign changes in the first column of the route table give the number of roots of the characteristic equation that exists in the right half of the S plane, and the control system is unstable. Now, what is the procedure to forming the route table? Fill the first two rows of the route array with the coefficient of the characteristic polynomial as mentioned in the table below. Start with the coefficient of Sn up to the S0. yes, अभी मैं नीचे एक टेबल दिखाने आ रही हूँ. आपने जो भी कैरेक्टरिस्टिक आपको इक्वेशन दी हुई है, आपने वहाँ पे Sn से लेके S0 तक के कोएफिशिएंट्स को लिख देना है. Then fill the remaining rows of the route array with the element as mentioned in the table. Continue the process until you will get the first column row of S0 is an, where an is a coefficient of S0 in the characteristic equation C. आपको भी एक टेबल की फॉर्म में दिखेगा. देखिए, दिस इज द n order characteristic equation a naught plus a naught into S1 plus a1 S1 n minus 1 plus a2 Sn minus 2 plus में a n minus 1 s की पावर 1 plus a n s0 up to the S0 coefficient. राइट डाउन Sn. सबसे पहले हाईएस्ट पावर क्या है, मान लो s की पावर 5 है, तो s की पावर 5, s की पावर 4, s की पावर 3, s की पावर 2, ऐसे ऑर्डर डिक्रीज होता जाएगा अप टू S0. यहाँ तो आपने s के कोफिशिएंट s वाले टर्म्स लिखनी है. यहाँ पर आपको Sn, इसमें आपको a नॉट, यहाँ से ये वाला a नॉट लिखना है, ये a2, यहाँ से ये वाला कोफिशिएंट लिखना है, फिर a4. यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं a0 a2 a4 a6, यानी कि ऑड इवन कोफिशिएंट्स आपको यहाँ लिखने हैं. देन Sn माइनस 1 हो जाएगा, तब आपको a1 a3 a5 a7 आपको ऑड कोफिशिएंट्स यहाँ पर लिखने हैं. यानी कि ये a1, ये आपका a3 यहाँ पर, a5 and so on
अब आपको ये चीज, ये वाले A0 और A1, A2 और A3, A4 और A5, A6 और A7, हो सकता है क्वेश्चन में A4 और A5 तक, A6 और 7 ना जाना पड़े, हो सकता है A0, A2, A1, A3 तक ही हो क्वेश्चन में, आपको A4 और A5 तक भी ना जाना पड़े। तो ये कोफिशिएंट्स आपको ऊपर के दो टेबल, दो रो जो मैं बात कर रही हूँ, ये आपको क्वेश्चन से मिलेंगे। अब हमने नेक्स्ट B1, B2, B3 निकालना है, C1, C2 निकालना है। अब B1 कैसे निकालेंगे, देखिए A1 इंटू A2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस A0 बाय A3, इधर से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइड बाय A1 कोफिशिएंट। मेक श्योर जब भी आप B1, B2, B3 कोफिशिएंट निकालेंगे, हर किसी का डिनोमिनेटर में कॉमन आएगा A1, तो याद कर ले, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। B2 निकालेंगे तो वो निकलेंगे A1 इंटू A4 माइनस A0 इंटू A5 अपॉन में A1 कोफिशिएंट, डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट A1 ही फिक्स है पूरी रो के लिए। B3 निकालेंगे A1 इंटू A6 माइनस A0 इंटू A7 अपॉन में B1। नाउ कम टू द C1। C1 कैसे निकलेगा, B1 इंटू A3 माइनस A1 इंटू B2 अपॉन में B1 कोफिशिएंट। अब उससे ऊपर वाला कोफिशिएंट, ऊपर वाला कोफिशिएंट पूरी रो के लिए फिक्स हो जाएगा। C2 कैसे निकलेगा, C2 निकलेगा B1 इंटू A5 माइनस A1 इंटू B3 अपॉन में B1 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आप देखिए चलते चले जाएंगे एंड आपके फर्दर कोफिशिएंट्स ये मैं दोबारा से रिपीट किया है एंड S1 अप टू S0 तक आपका ये हमने टेबल फॉर्म बना ली। अब कैसे किसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, आपने टेबल बनाना आपको आ गया। देखिए ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अभी देखिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे दी है S4 प्लस 3S क्यूब प्लस 3S स्क्वायर प्लस 2S प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन देखिए, सारे कोफिशिएंट्स प्रेजेंट है S4, S3, S2, S1 और S0 और all the coefficient of the characteristic equation are positive, so the control system satisfy the necessary condition। अब हमें sufficient condition हो गई, अब हमें necessary condition को देखना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अरेंज कर दिया। देखिए यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 था तो हमने क्या किया, 1 लिया, उसके बाद एक छोड़ के 3 लिया, ये रहा 3, और उसके बाद ये 1। तो यानी कि हमने यहाँ इवन कोफिशिएंट्स लिखने थे, यहाँ पर ओड यानी कि ये 3 और ये 2 हमने लिख दिया। S4, S3, S2, S1, S0 हमने यहाँ पे S की हाईएस्ट ऑर्डर से लेके S0 तक हमने लिखना है। फिर अब हमने ये कैलकुलेट करना है S स्क्वायर। S स्क्वायर कैसे निकलेगा, 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 2, 1 इंटू 2 क्या होगा 2, 9 माइनस 2 7 डिवाइड बाई 3। ऐसे यहाँ पे ले लेंगे 3 इंटू 1 3 माइनस 0 इंटू 1, यहाँ 0 है तो आप 0 कंसिडर करेंगे, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 इंटू 1 3, 3 डिवाइड बाई 3 यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो पहला आ गया 7/3, दूसरा आया 1। फिर उसके आगे आगे थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, फिर निकालेंगे नेक्स्ट कोफिशिएंट, तो वो हो जाएगा हमारा 7/3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3 अपॉन में 7/3 दैट इज 5/7 एंड नेक्स्ट आपको वैसे ही फॉर्मूले से निकलेगा 1। जब आपने देखा, देखिए अब इस रो को हमने चेक करना है, ये वाली रो, पहला कोफिशिएंट 1 था, दूसरा कोफिशिएंट 3 था, तीसरा कोफिशिएंट 7/3 था, फोर्थ कोफिशिएंट आपका 5/7 था और नेक्स्ट आपका 1 है। तो आप देखिए फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट्स आपके क्या है, पॉजिटिव है। अब हमने नेसेसरी कंडीशन देख ली, अब हम सेटिस्फाई करेंगे सफिशिएंट कंडीशन को। तो ऑल द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ द राउट एरे आर पॉजिटिव, there is a no sign change in the first column of the route array, so the control system is positive। अगर मान लो कहीं पर भी एक साइन चेंज हो जाता, सपोज यहाँ 1 आ जाता, तो आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाता। अब सबके साइन पॉजिटिव है तो सिस्टम आपका स्टेबल है, एक पॉइंट। दूसरा आपका ये बिल्कुल बेसिक और फर्स्ट मेथड था। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल केसेस लेंगे कि जब कोई एक एलिमेंट रो के अंदर 0 आ जाता है तो उस केस में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट हो आप क्वेरी पूछ सकते हैं मुझसे। एंड अप टू दिस वीडियो हमने सिर्फ RH क्राइटेरिया का एक बेसिक एग्जांपल डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।